ओके, तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, दैट इज इलास्टिक एंड inelastic collision. Okay, so in now we studied about perfectly elastic collision. Okay, so in perfectly elastic collision क्या होता है सर? काइनेटिक एनर्जी of the system remains conserved. It remains conserved. That means the total initial kinetic energy is equal to total final kinetic energy. Okay, so whatever is the total initial kinetic energy, that will be equal to total final kinetic energy. And also for perfectly elastic collision, the value for coefficient of restitution, that is E, is equal to क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 1. And what is coefficient of restitution? Sir, it is the ratio of the velocity of separation upon the velocity of approach. Okay, so that will be V1 minus V2 upon U2 minus U1. Okay, ये हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. फिर इसके बाद हम लोग ने पढ़ा इनइलास्टिक कोलिजन. ओके, अब इनइलास्टिक कोलिजन में हमने क्या स्टडी किया कि सर इनइलास्टिक कोलिजन में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. Okay, that means the total final kinetic energy is not equal to total initial kinetic energy. That means there will always be some loss in kinetic energy. So in elastic collision, there will always be some loss of kinetic energy. Okay, and for inelastic collision, the value for perfectly inelastic collision, the value for coefficient of restitution, that is E, is completely equal to 0. This implies that the bodies stick together after collision. So when bodies stick together after collision, it implies they did undergo perfectly inelastic collision. Okay, I think यहाँ तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. यहाँ तक अपना हुआ था. ठीक है, चलो तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस आइडिया को और एक्सप्लोर करेंगे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेरिवेशन ऑफ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इसको अपने को स्टडी करना है स्टूडेंट्स आज. नाउ इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, देखो सपोज कर लो स्टूडेंट्स हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है. ओके, एंड बोथ दी ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विथ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी. तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, यहाँ भी हमारे पास एक बॉल है. ठीक है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, विथ सर्टेन वेलोसिटी. ओके, तो लेट अस से कि भाई ये जो बॉडी है इसका मास है m1, इसका मास है m2. Okay, and m1 is moving with certain initial velocity u1 and m2 is moving with certain initial velocity u2. They both are moving in the same direction and provided u1 will always be greater than क्या रहेगा बच्चा,
U2. ओके, तो U1 इज ग्रेटर देन U2. इसका मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये हाई स्पीड से मूव कर रहा है एज कंपेयर टू दिस सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास M2. तो आगे वाला ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है, पीछे वाला ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है. तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पीछे वाला जो है वो आगे वाले के साथ क्या होगा, कोलाइड करेगा. सो देयर विल बी ए कोलिजन बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर सर्टेन टाइम. ओके, अच्छा, व्हेन द कोलिजन हैपेंस स्टूडेंट्स, व्हेन द कोलिजन हैपन, ये हमने पहले भी स्टडी किया है, ये हमने पहले भी स्टडी किया. व्हेन द कोलिजन हैपेंस, व्हेन द कोलिजन हैपेंस, सो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट, बोथ द ऑब्जेक्ट्स, दे विल exert force on each other. So during collision, both the objects will exert force on each other. Both the objects will exert force on each other. ये छोटा वाला बड़े पे फोर्स लगाएगा, ठीक है. So this M1 will exert force on M2. It will do action. तो इस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा. This is F21, force acting on second object due to 1. एंड इसके कंपेयर में ये इसको क्या देगा, रिएक्शन देगा इक्वल एंड अपोजिट. तो इसमें फोर्स लगेगा F12. So both these forces will be equal in magnitude and they will be opposite in direction. Now what happens after they apply force on each other? Sir, their velocities will change. So इन दोनों का जो velocity है वो change हो जाएगा. इन दोनों का velocity जो है वो change हो जाएगा. Now both the objects will be moving with different velocities. Okay. So let us say M1 is now moving with velocity V1 and M2 is now moving with velocity V2. So this is after collision and this is before collision. तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे that before collision M1 and M2 were moving with velocity U1 and U2 respectively, and after collision their velocity changed. Now they are moving with velocity V1 and V2 after the collision. Okay, अब इसी का अपने को डेरिवेशन निकालना है by applying the concept of elastic collision. Okay, चलो, तो सबसे पहले लेट अस से कि भाई यहाँ पर ये जो कोलिजन हो रहा है, इट इज एन इलास्टिक कोलिजन. नाउ सिंस इट इज एन इलास्टिक कोलिजन बच्चा लोग, सो द टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, since it is an elastic collision, the total initial kinetic energy will be equal to total final kinetic energy. Now what will be total initial? Total बच्चा, total means इसका भी kinetic energy plus इसका भी kinetic energy. So that will be half m1 u1 square plus half m2 u2 square. That is total initial. Total final क्या है? Final मतलब after the collision. Very good. Half m1 v1 square plus half m2 v2 square. समझा आपने को? ये इक्वेशन आएगा अपना टोटल इनिशियल इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल फाइनल. नाउ स्टूडेंट्स, क्या बेटा, हाफ कैंसिल होगा, बस वही स्टेप में आ ही रहा था मैं. वेरी गुड, वो स्टेप में आ ही रहा था. इफ आई टेक हाफ कॉमन फ्रॉम हियर, हाफ कॉमन फ्रॉम हियर, हाफ एंड हाफ फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या मिलेगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर. अब ये m1 वाला टर्म मैं इधर ले लूंगा और m2 वाले टर्म को वहां भेज दूंगा. ओके, टेकिंग ऑल द m1s एंड m2s टुगेदर. सो नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा मेरे को, m1 u1 स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आया m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. ये रहेगा. नाउ इस क्लियर दिख रहा है कि हमने साथ में क्यों लिया था, बिकॉज वी कैन टेक m1 एंड m2 कॉमन. तो यहां से m1 कॉमन आ गया मेरा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. अच्छा, वन मोर पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करूंगा बिफोर आई फॉरगेट. स्टूडेंट्स, अगर ये डेरिवेशन, अच्छा, ये डेरिवेशन में क्या हो सकता है ना बच्चा लोग, कि आप शायद
ध्यान रखना है, बहुत बेसिक मिस्टेक होती है, जैसे ये वाली हो गई u1 u2 थोड़ा संभाल के लिखना, v1 v2 संभाल के लिखना, ज्यादातर मिस्टेक्स यहीं पर होती है इस डेरिवेशन के अंदर। स्टूडेंट जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं कि u1 कहाँ लिखना है, v1 कहाँ लिखना है। सो बी वेरी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दिस माइट कम इन योर एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और ये जब चेंजेस करते हैं हम लोग यहाँ से वहां ले जाने में, यही सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, तो इसको ध्यान में रखना। ओके, अब मेरे बोलने के बाद भी हम डैम श्योर कोई ना कोई एग्जाम में मिस्टेक करेगा। हेड-ऑन इलास्टिक कोलिजन। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर देता हूँ सो दैट आई कैन इसको थोड़ा सा मुझे और विजिबल है ना। एक स्टेप और ऐड करना है मेरे को बस। अब स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखो, ये वाले, दिस इज a minus b, a square minus b square, and this is also a square minus b square। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a plus b into a minus b। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, दिस इज m1 as it is, I will get u1 plus v1 u1 minus v1 is equal to m2 v2 plus u2 into v2 minus u2। अब ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स कोलिजन कोई भी टाइप का हो, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि वन थिंग इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड इन बोथ द कोलिजन एंड दैट इज मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम shall remain constant for any type of collision, it is just the kinetic energy that differs। तो जो भी डिफरेंस आता है वो काइनेटिक एनर्जी में आता है, मोमेंटम हर एक टाइप के कोलिजन के लिए कंजर्व्ड ही रहेगा, वेदर इट इज एन इलास्टिक कोलिजन, वेदर इट इज एन इनइलास्टिक कोलिजन, वेदर इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चा लोग कि दोनों केस के लिए अपना मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। अब यहां पर अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू law of conservation of linear momentum, okay, total initial momentum is equal to total final momentum। ओके, सो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, सो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, सो आई विल गेट m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस क्या आएगा m2 v2। अगेन ये m1 वाला टर्म इधर, m2 वाला टर्म वहां पर। सो नेक्स्ट स्टेप आई विल बी गेटिंग m1 u1 माइनस m1 v1 is equal to m2 v2 minus m2 u2। Now if I take m1 common, I'll be getting u1 minus v1 and यहाँ से m2 common, तो v2 minus क्या आएगा u2। This is my equation number 2। अब 1 और 2 दोनों इक्वेशन को अपने को बस डिवाइड करना है, तो डिवाइड बोथ द इक्वेशन, डिवाइड बोथ द इक्वेशन, डिवाइड बोथ द इक्वेशन। Okay, so equation 1 क्या था students, what was equation number 1, so it was m1 u1 plus v1 into u1 minus v1 is equal to m2, m2 क्या था, yes v2 u2, v2 plus u2 into v2 minus u2, ये था अपना इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे विद इक्वेशन नंबर 2, तो डिवाइड डिवाइड क्या आएगा बेटा, यहाँ पर m1 u1 माइनस v1, यहाँ पर रहेगा m2 v2 माइनस u2। अब आप देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, m1 m1 कैंसिल कैंसिल, m2 m2 कैंसिल कैंसिल, सिर्फ क्या मिला मेरे को, u1 प्लस v1
इज इक्वल टू V2 प्लस U2। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, U1 माइनस U2 विल बी V2 माइनस V1। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इनका रेशियो लूं, इस पूरे ब्रैकेट को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1। जीरो नहीं भाई, 1 आएगा। अरे भाई यहां से मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको। ओके, ये मिस्टेक मत करना, इक्वल टू जीरो नहीं आएगा। ये पूरे के पूरे ब्रैकेट यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है, तो आंसर कितना आएगा भाई अपने को? 1। अब ये जो रेशियो हम देख रहे हैं सर, ये देखा देखा लग रहा है सर, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ क्या है? ई। तो ई का आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? 1। अपने को यही प्रूव करना था। तो अपने को यहाँ पे प्रूव करना है कि फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1। ये प्रूव करना पड़ेगा अपने को। मैंने पहले आप लोग को बता दिया डायरेक्टली, थ्योरी पढ़ाते समय में डायरेक्टली बोल दिया कि भाई अपना इक्वल टू 1 रहेगा। उसको अपने को प्रूव करना पड़ेगा कि हाउ इट इज इक्वल टू 1। ओके, समझा? अब इसके अंदर एक छोटा सा सेक्शन और है, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटीज फाइंड आउट करेंगे। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। We will find the final velocities. So next is the expressions for final velocities. फाइनल वेलोसिटीज मतलब V1 V2 का फॉर्मूला। अब अपने को क्या करना है ना स्टूडेंट्स, देख, पूरा सॉल्व नहीं करना है अपने को, पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, मैं खाली आपको टेक्निक बता रहा हूँ क्या करना है। यहां से ना V1 को उधर ले लो, उधर ले लो, और इस पूरे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करोगे? इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट। कुछ सॉल्व नहीं करना है अपने को सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज, तो क्या होगा भाई अपना? V1, तो V1 विल बी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 into u2। सिमिलरली V2 रहेगा, बस इंटरचेंज करना है 1 एंड 2 को। तो यहां मुझे आएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, u1 की जगह पे u2 आ जाएगा, 2 m1 की m2 की जगह पे m1 आ जाएगा, यहां पर m1 प्लस m2 इंटू क्या आएगा स्टूडेंट्स? u1। तो आपको ना स्टूडेंट्स सिर्फ यही एक फॉर्मूला याद करना है। ये एक बार फॉर्मूला याद हो गया, फिर नेक्स्ट वाले के लिए क्या करना है? सिर्फ 1 एंड 2 को क्या करना है बच्चा लोग? आपको इंटरचेंज करना है। यहाँ पर m1 माइनस m2, यहाँ पे क्या हो गया? m2 माइनस m1। यहाँ पे आप इंटरचेंज करोगे सेम ही आएगा ना, m1 प्लस m2। u1 क्या बन गया बच्चा लोग? u2। m2 क्या बन गया बच्चा लोग? m1। u2 क्या बन गया बच्चा लोग? u1। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। एक बार ये फॉर्मूला याद हो गया, V2 याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये फाइंड आउट द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर सम करेंगे इसके ऊपर। आओ, हाँ, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था दैट इन इलास्टिक कोलिजन there always be there will always be loss in kinetic energy, there always be loss in kinetic energy। तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा इन इलास्टिक कोलिजन। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अगर अपने को निकालना है स्टूडेंट, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा के ई। इट विल बी डेल्टा के ई इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल।
बराबर, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे ना, क्योंकि हमेशा क्या होगा, एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इट विल ऑलवेज बी लेस देन क्या रहेगा बच्चा लोग, इनिशियल काइनेटिक। ओके, अब इसमें हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इट विल बी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस आएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऐसे करना है अपने को। सो टोटल इनिशियल एंड टोटल फाइनल अपने को निकालना है। अब इसमें खाली क्या करना है स्टूडेंट्स, अपने को कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद ये सम अपना हो जाएगा। ठीक है, ओके। ओके, सो ये अपना डेल्टा काइनेटिक एनर्जी हो गया कि हम लोग फाइंड आउट करेंगे लॉस। तो लॉस हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस क्या होगा बच्चा लोग, फाइनल। ये हमेशा याद रखना। ओके, इस तरीके से इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट होता है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस भी है कि अगर हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है बच्चा लोग, अगर हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बच्चा लोग, बॉडी स्टिक टुगेदर एंड दे मूव एज अ वन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ बॉडी स्टिक हो जाएंगी m1 प्लस m2 एंड देन दे विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी v। तो यहाँ पर जो कॉमन वेलोसिटी होगा दैट विल बी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन क्या आएगा, m1 प्लस m2। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, देखो। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा सर, इनिशियल माइनस रहेगा फाइनल। अब इनिशियल है सर अपना हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस फाइनल में क्या होगा सर, फाइनल में कोलिजन के बाद बोथ बॉडीज आर स्टिक टुगेदर, तो दोनों का मास सेम होगा, सॉरी सेम नहीं, ऐड हो जाएगा m1 प्लस m2 एंड दे बोथ आर मूविंग विद सम कॉमन वेलोसिटी v स्क्वायर। जब आप इस v का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस v का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा आपको सर, डेल्टा के ई हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2। अब v का स्क्वायर करोगे तो आपको आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व नहीं करना है बच्चा, अपने को पूरा सॉल्व नहीं करना है। इसके बाद डायरेक्ट अपना इक्वेशन आएगा, ऑन लिखने का, ऑन सिंप्लीफाइंग चीज आपने को लिखना है, ऑन सिंप्लीफाइंग द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई का फॉर्मूला आएगा हाफ m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 minus u2 the whole square. So this is the loss in kinetic energy for perfectly inelastic collision. अगर नॉर्मल इनइलास्टिक है तो ये फॉर्मूला लगाना है, सिंपल, इनिशियल माइनस क्या लगना है, फाइनल। सो दिस इज फॉर नॉर्मल और जस्ट इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये फॉर्मूला अपने को लगाना है डायरेक्ट, हाफ m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 द होल स्क्वायर। सो जिससे हम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर नॉर्मल इलास्टिक एंड फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, बस ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करना है इसमें, डेरिवेशन नहीं है इसमें। अगर डेरिवेशन आया भी तो जैसे मैंने बताया उतना ही अपने को करने का है और कुछ नहीं करने का ज्यादा अपने को। ये सिर्फ पूरा फॉर्मूलेस के ऊपर है, सिर्फ क्वेश्चन आएगा अपने को इसके ऊपर, वो नहीं मच डेरिवेशन।